Hello and welcome to Spirit of HRRL, a series that brings you stories from the heart of HPCL Rajasthan Refinery Limited, where passion meets purpose and innovation drives progress. HPCL Rajasthan Refinery Limited, fondly known as the jewel in the desert at Pachpadra, Rajasthan, is a 9 million metric ton refinery cum petrochemical complex, a true symbol of engineering excellence, shaping India's energy landscape. Today, we bring you the story of an officer whose calm determination, technical acumen, and people-centric approach reflect the true spirit of HRRL. From navigating complex challenges to fostering the collaboration across teams, she continues to set an example of leadership built on strength, empathy, and vision. Please welcome Ms. P. Suhasini, whose journey stands as an inspiration for professionals who believe that progress begins with perseverance and purpose. Hi Suhasini and welcome to this episode of Spirit of HRRL. Hello, sir. We are so happy to have you here. Suhasini, please tell me about yourself. I joined in HRRL 2 years ago in December 2023, and since then I've seen this unit grow. I've seen this unit uncover. And apart from this, before I was working in some other company. I came here through CBT, the All India Entrance Exam. I have done my chemical engineering from SRM Institute of Technology in Chennai, and then it's been now for almost 4 years of my career. And when I joined here, I was the only woman in this unit. We were a Oh, team wow. of 4 people. And then slowly I have seen the team also grow. Now from 4 we are 15. And even the women empowerment has come in this unit recently because 2 of the new engineers have joined us. So that is there. That's all about me. And I work here as assistant engineer in VGO unit as part of commissioning. Oh wow, that's so cool actually. When you said that you were the only woman when you came in In here this unit, in yeah. this unit, yes. Correct. So talking about your unit, so what is this unit where you are working in, and tell us something about your team as such and your work as such. Okay, so coming to work, first of all, when we get the feed from CDU video column, and then we process it, we basically remove the impurities, and then our main aim is to send it to the PFCCU unit, where this will be further cracked and valuable products will be generated from that. So our main aim would be to hydro treat the video feed. And then coming to team, well, in the beginning they have supported me a lot because no matter how much, like we are in 21st century today, but even then there is a stereotype or there's a problem with people when they come like, oh, female engineer in this unit. It's gonna be very difficult. That's Like when I always there. went for training also, they were like, oh, in treating there's a woman. ये तो कैसे हो गया? मतलब लड़की कैसे काम करेगी? So that was one thing, but my bosses were there. 2 of my bosses were there, and they supported me a lot. कि नहीं तुम करो, हम हैं तुम्हारे पीछे, तुम्हें जो करना है, तुम्हें जहाँ दिक्कत आएगी, अगर आपको और कोई आके कुछ बोलता है तो हमें कंप्लेन कीजिए. तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया. कंपनी से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है उस मामले में. बट अभी भी चैलेंजेस तो थोड़े रहते ही हैं. फीमेल का हम कितना भी बोलते हैं, बट स्टिल बीइंग अ फीमेल इज टफ. काम वाइज नहीं, प्रोफेशनली हम लोग भी उतना कर सकते जितना कोई दूसरा इंजीनियर कर सकता है. बट नॉर्मली सिचुएशन वाइज एनवायरमेंट वो सब में थोड़ा इशू रहता है. बट कंपनी हैज बीन वेरी सपोर्टिव सो फार. You rightly said that there is going to be challenges और हमेशा वो एक stereotype रहता ही है कि female employee है, इतने hardship location में काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी. There's always doubt, but I'm pretty sure that अगर आप कर पा रहे तो हर कोई कर पाएगा. And you have seen these challenges, you have overcome these challenges. So it's a very good message to everyone watching you that is not something which is impossible as such. True, very अगर true. Yeah. अगर आपने सोच लिया तो आप कर लोगे. So coming to the next question, तुम्हारा जो डेली का जो वर्क प्रोफाइल है वो कैसा रहता है कि मॉर्निंग से लेके शाम तक क्या क्या करना होता है? So अभी जैसे हम लोग प्री कमिशनिंग स्टेज पर हैं. हम लोग अभी यूनिट ऑलमोस्ट 96% हमारा कंप्लीट हो गया. हम लोग कमिशनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं. तो अभी हमारा काम रहता है कि हमें प्लांट के बारे में, क्योंकि हम लोग को स्टार्टअप करना भी नहीं आता. वी आर फ्रेशर्स. 2 साल हो गए बट रनिंग प्लांट हमने नहीं देखा है. तो हमें पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट की डिटेल्स क्या है. इक्विपमेंट हमें पता होना चाहिए, प्रोसेस हमें अच्छे से पता होना चाहिए. अदर देन दैट हम लोग डेली थोड़ा लर्निंग भी रहता है. सारे सीनियर्स रहते हैं, वो सिखाते हैं. उसके अलावा काम में हम लोगों को क्लियरेंस देना होता है. बेसिकली अब स्ट्रक्चर बन गया है, सही है कि नहीं, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, विल इट वर्क और नॉट, वो हम लोगों को देखना है. हम लोग उसको लाइंस को क्लियर करवाना है, और कोई भी प्री कमिशनिंग एक्टिविटी सारी हम लोगों को देखनी है. बेसिकली फॉर्मेट चेक्स करते हैं हम लोग
तो वो हमारा डे टू डे स्केड्यूल मोस्टली वैसा रहता है। अभी जैसे वी हैव लाइक नए मेंबर्स आ गए हैं हम लोगों के पास, तो थोड़ा बहुत उनके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ वापस से एक बार फील्ड को ट्रेस करना, वो सब देखना, तो वो सब हम लोगों का डेली एक्टिविटीज में रहता है। अदर देन दैट डॉक्यूमेंटेशन वर्क, तो पेपर वर्क तो हर जगह है। Correct, correct. So Suhasini, मतलब, how do you feel to be a part of this, mega structure? I mean, 4,000 acres of land, right from the barren sand land to, such a mega structure, और इतना बड़ा इक्विपमेंट्स, इतने हैवी मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है, कैसा लगता है यहाँ पे इस टीम का पार्ट होकर? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे आई यूज्ड टू गो टू फैक्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्री देखा, मैंने स्टील प्लांट भी देखा है। तो तब से मेरे को थोड़ा फैसिनेशन है कि नहीं, डेस्क जॉब तो नहीं करना है, फील्ड में आना है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, देखेंगे। तो ये जो सीमेंट स्ट्रक्चर सबको लगता है कि कंक्रीट जंगल है, मेरे को उसमें बहुत मजा आता है। Oh, wow. तो मैं यूजुअली मैं फोटोग्राफी करती हूँ, मेरी हॉबी फोटोग्राफी में, मैंने यहाँ पे भी ऐसे इवेंट्स में किया हुआ है थोड़ा बहुत। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सारे फोटोग्राफी का एंगल ढूंढती हूँ। अच्छा, तो दैट इज हाउ आई रिमेम्बर द प्लांट कि यहाँ पे ये एंगल था, तो ये इक्विपमेंट यहाँ पर है। सो आई फाइंड माई फन इन दिस रिफाइनरी। और इतना बड़ा है, मतलब कोई एंड नहीं है। आई कैन गो टू एनी यूनिट, नोबडी स्टॉप्स अस। लर्निंग के लिए तो बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यहाँ पे आने के बाद, बिकॉज अर्लियर प्रोफाइल मेरा सेल्स का था। तो सेल्स वाज, वहाँ पे भी क्लाइंट विजिट करने को मिलते थे। आई हैव बीन टू एलएनटी साइट्स एंड एवरीथिंग, बट एक खुद काम करना, खुद का तो मेरा डेस्क जॉब था, तो इट वाज नॉट दैट मच फन। यहाँ पे आके आई एम वेरी हैप्पी। ओके, सो सुहासिनी, एज यू सेड कि आपने जॉब ट्रांजिशन किया, हाँ जी, आप पहले एक डेस्क जॉब कर रहे थे, आप यहाँ पर आए हो। बिल्कुल। जो अभी जो न्यू बडिंग इंजीनियर्स आपको देख रहे होंगे, तो क्या मैसेज देना चाहोगे उनको कि व्हाई यू शुड जॉइन दिस रिफाइनरी और मे बी सम टर्मिनल? फॉर केमिकल इंजीनियर्स आई वुड से कि रिफाइनरी में सीखने के लिए बहुत है, बट इट्स ऑल्सो अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव। नॉट एवरी केमिकल इंजीनियर वुड वांट टू वर्क इन फील्ड। केमिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट मेरे को इंटरेस्ट आता है ऑपरेशंस में। तो उस हिसाब से अगर कोई ऑपरेशंस में दिखाना चाहेगा इंटरेस्ट, तो आई वुड से कि इतना सब कुछ नया नया देखने को मिलता है। लाइक नॉर्मली इफ यू सिटिंग इनसाइड ऑफिस, यू वोंट इमेजिन कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। You have to come out in the field, you have to witness it yourself, and then only you will come to know कि oh, this is also possible in this world. इतना कुछ टेक्नोलॉजी है, इतना कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वो सब देखने के लिए I would always ask people to come and join the refinery. Before we end this conversation, can you please tell कि यहाँ पे आपका टाउनशिप कैसा है? We have heard कि बहुत अच्छा टाउनशिप है। तो other than office, what do you do? What are your hobbies? So other than office, मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ फोटोग्राफी करने का, जहाँ पे मेरे को मिलता है लाइक कैप्चरिंग पीपल। पहले उतना नहीं था, नाउ आई एम ट्रांजिशनिंग टू कैप्चरिंग पीपल मोर एंड मेकिंग मोमेंट्स। बट पहले आई यूज्ड टू डू नेचर फोटोग्राफी। तो जैसे टाउनशिप इतनी बड़ी है एंड इट यूज्ड टू बी अ जंगल, तो वहाँ पे आपको पीकॉक है, स्नेक्स है, देयर आर सो मेनी बर्ड्स देयर। एंड सिंस रिजर्वॉयर के वहाँ पे थोड़ा पानी, लाइक इट इज होल्डिंग अ वाटर, सो वहाँ पे डक्स और माइग्रेटरी बर्ड्स भी थोड़ी बहुत आ जाती हैं। सो आई ट्राई टू फाइंड पीस इन दैट। Like sunsets are very pretty in the township. From my flat also, from the reservoir also, the entire view is very pretty. So I find my solace there. And other than that, I do paint. So currently I'm actually painting the VGO unit, like sketching and all. So it's under progress. Nice. Thank you so much, Suhasini, Yeah. for having this conversation with us and sharing your experience. And whosoever is watching you, one can tell that you are enthusiastic, you are passionate about your work as well as your hobbies, and you're finding time for your hobbies, and you're pursuing it very well. Thank you so much. Thank you, sir.